الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.310 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 310 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 یعنی 285۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ آمنا الف میم نون سے ہے، معنی مان لیا، بلیوڈ، اور رسول روٹ ورڈ را سین لام سے ہے، معنی رسول نے، دا میسنجر، بما با میم الف سے ہے، معنی جو کچھ، ان واٹ انزلا نون زا لام سے ہے، معنی اترا، واز ریویلڈ، الیہ الف لام یا سے ہے، معنی اس کی طرف، ٹو ہم، من میم نون سے معنی سے، فرم، ربہ را با سے ہے، معنی اس کا رب، ہز لارڈ، والمؤمنون الف میم نون سے ہے، معنی اور مؤمن یعنی مومنین، مومن کا جمع ہے، اینڈ دی بلیورز، کلن کاف لام لام سے ہے، معنی سب، all، آمنا الف میم نون سے ہے، معنی ایمان لائے، بلیوڈ، باللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ پر، ان اللہ، وملائکتہ میم لام کاف سے ہے، معنی اور اس کے فرشتے، اینڈ ہز اینجلز، وکتبہ کاف تا با سے ہے، معنی اور اس کی کتابیں، اینڈ ہز بکس، ورسلہ را سین لام سے ہے، معنی اور اس کے رسول، رسول کی جمع رسل ہے، اینڈ ہز میسنجرز، لا لام الف سے معنی نہیں، ناٹ، نفرق فا را قاف سے ہے، معنی ہم فرق کرتے ہیں، وی میک ڈسٹنکشن، بینا با یا نون سے، معنی درمیان، بٹوین، احد الف ہا دا سے ہے، معنی کسی ایک، اینی من میم نون سے ہے، معنی کے، آف، رسولہ را سین لام سے ہے، معنی اس کے رسول، پلورل ہے رسول کا، ہز میسنجرز، وقالو آ واو لام سے ہے، معنی اور انہوں نے کہا، اینڈ دے سیڈ، سمعنا سین میم عین سے ہے، معنی ہم نے سنا، وی ہرڈ، واطعنا تو واو عین سے ہے، معنی اور ہم نے اطاعت کی، اینڈ وی اوبیڈ، غفرانک غین فا را سے ہے، معنی تیری بخشش ہم کو عطا کر، گرانٹ us your forgiveness، ربنا را با سے ہے، معنی ہمارے رب، our Lord، وَإِلَيْكَ الف لام یا سے ہے، معنی اور تیری طرف، اینڈ ٹو یو المصیر صاد یا را سے ہے، معنی لوٹ کر جانا، the return۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ آمن الرسول، رسول نے مان لیا، بما انزل الیہ جو کچھ اس کی طرف اترا، من ربہ والمؤمنون اس کے رب کی طرف سے اور مومنوں نے بھی، کل آمن باللہ سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، وقالوا سمعنا واطعنا اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا تیری بخشش ہم کو عطا کر اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ رسول نے مان لیا جو کچھ اس کی طرف اترا اس کے رب کی طرف سے، اور مومنوں نے بھی سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسولوں میں سے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش ہم کو عطا کر اے ہمارے رب اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔
फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। आमना रसूलु बिलीव द मैसेंजर बिमा उनजिला इलैहि इन व्हाट वाज रिवील्ड टू हिम मिन रब्बिही वल मुमिनून फ्रॉम हिज लॉर्ड एंड द बिलीवर्स कुल्लुन आमना बिल्लाहि all believed in Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi and his angels and his books and his messengers. La nufarriqu bayna ahadin, we do not make distinction between any min rusulihi of his messengers. Wa qalu sami'na wa ata'na, and they said we heard and we believed. Ghufranaka rabbana, grant us your forgiveness our Lord. Wa ilaykal masir, and to you is the return. Complete translation देखें। Believe the messenger in what was revealed to him from his Lord, and the believers all believed in Allah and his angels and his books and his messengers. We do not make distinction between any of his messengers. And they said, we heard and we believed. Grant us your forgiveness our Lord, and to you is the return. तफसीर आयत देखें। आयत नंबर 285 और 286 सूरह बकरा के इख्तितामी कलिमात हैं। यानी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं। ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स हैं अल्लाह ताला के सूरह के सिलसिले में। इसके इब्तिदाई और इख्तितामी कलाम के मज़मून व मतालिब में अहम आहंगी है। यानी अगर सूरह बकरा की शुरू की आयतें हम देखें और फिर आखिरी आयतों को हम कंपेयर करें तो दोनों भी ईमान के सिलसिले में हैं। शुरू में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, और मुत्तकीन की अहम तरीन सिफात यही बताई गई है कि वो ईमान बिलगैब रखते हैं। इस आयत यानी आयत 25 में भी अल्लाह पर ईमान रखने की बात हो रही है। अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर और अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान रखने की बात हो रही है। इस आयत में अबूदियत और बंदगी के आदाब मज़कूर हैं। आयत की इब्तिदा कुछ इस तरह से है। आमना रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, रसूल ने मान लिया जो कुछ उसकी तरफ उतरा उसके रब की तरफ से, और मोमिनों ने भी। यानी अगर हम इस आयत पर गौर करें, आयत नंबर 285 पर, तो हम महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ईमान की अहमियत को यहाँ उजागर करता है और उन बंदों की सिफात को बताता है जो अल्लाह के हर हुक्म को सुनते हैं और मानते हैं, अमल करते हैं। एक मालिम, रहनुमा, रहबर व पैगंबर के लिए अशद जरूरी है कि जिस रास्ते की तरफ वो लोगों को दावत दे रहा है इससे सिर्फ पूरी तरह वाकिफ ही ना रहे, बल्कि उसको इस बात का पूरी तरह यकीन रहे कि वो लोगों को हक की तरफ ही बुला रहा है। इस हक बात पर उसको पूरी तरह मजबूत ईमान रहे। यानी एक रसूल की सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी ये है कि वो अव्वलीन में से हो अल्लाह पर ईमान लाने वालों में। इस तरह से अल्लाह ने जो नाजिल किया है यानी अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, उस पर भी वो अव्वलीन में से हो ईमान लाने वालों में से। और फिर वो रसूल के अतराफ जो मोमिन बंदे हैं उनका भी ये फ़र्ज बनता है कि वो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाएं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्लाम के मिशन की शुरुआत रसूल के अपने ईमान से है कि उसको इस बात पर ईमान व यकीन है कि वो अल्लाह का रसूल है और इस पर नाजिल शुदा किताब अल्लाह ही का कलाम है। ज़ेर बहस आयत यानी आयत 285 में ईमान रसूल इसीलिए अलहदा मज़कूर है। चुनांचे कुरान में एक दूसरी जगह जिक्र आता है कि वह उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, और मुझे ये हुक्म भी मिला है कि मैं सबसे पहला मुस्लिम बनूं। यानी पैगंबर को हुक्म होता है कि सबसे पहले वो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहला फरमा बरदार हूँ, यानी मैं सबसे पहला मुसलमानों में मुसलमान हूँ। और पैगंबर का साथ देने वाले मोमिन बंदों को भी इस बात का पूरा यकीन होता है कि वो अल्लाह का रसूल है और इस पर नाजिल शुदा किताब अल्लाह का कलाम है। यहाँ मोमिनीन के बारे में अल्लाह ताला खुद खबर देता है कि वो भी ईमान रखते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है इस ईमान की जिसकी गवाही खुद अल्लाह दे। रसूलों के बारे में मोमिनीन का मौक़िफ़ किस कदर सही होता है वो यहाँ लतीफ़ अंदाज में बयान हो रहा है। मोमिनीन कहते हैं ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुली, हम फ़र्क नहीं करते किसी एक के दरमियान उसके रसूलों में से। ये इस्लाम पर ईमान रखने वालों की एक निहायत अहम सिफत है कि वो बिला तफरीक सारे रसूलों पर ईमान रखते हैं। यानी एक मुसलमान ही है जो तमाम पैगम्बरान इस्लाम पर ईमान रखता है, जबकि यहूद व नसारा बाज़ रसूलों पर ईमान रखते हैं और बाज़ पर ईमान नहीं रखते। ये रवैया अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि किसी एक रसूल का इनकार भी दरअसल कुफ्र में शुमार होता है। अल्लाह और उसके रसूलों, किताबों और मलाइका पर ईमान लाने के बाद मोमिनीन को चाहिए कि अल्लाह के हर हुक्म को सुने और उसकी इत्तिबा करे। वक़ालू समिअना व अताअना, और उन्होंने कहा, यानी मोमिन बंदों का ये कौल होता है कि हमने सुना और हमने इताअत की।
समीना से मुराद कबूल व तस्दीक है और अताना इताअत और फरमाबरदारी की तरफ इशारा है। चुनांचे ईमान की हकीकत यही है कि इकरार बिल लिसान हो, रब की बंदगी के लिए अमल बिल अरकान भी साथ हो। यानी ईमान जब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम जबान से भी उसका इकरार ना करें और जब तक उस हुक्म पर अमल करके ना दिखा दें। बंदों पर अल्लाह का यह हक है कि वो उसके हर हुक्म की तस्दीक के साथ इताअत करें। फिर अल्लाह पर बंदों का हक ये है कि उन्हें माफ़ करे और बख्श दे। यानी एक तरफ बंदों को ये हुक्म है कि अल्लाह के हर हुक्म की तस्दीक करें, हर हुक्म के आगे सर झुका दें और उसकी इत्तिबा करें, और फिर अल्लाह ताला बदले में उनके गुनाह ज़रूर माफ़ कर देगा। चूँकि अल्लाह ताला बंदे को इस तरह से तालीम देते हैं, वक़ालू समीना व अताना के बाद ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, तेरी बख्शिश हमको अता कर ए हमारे रब, और तेरी तरफ लौट कर जाना है। सूरह बकरा की आखिरी दो आयत और उनकी फजीलत यहाँ देखते हैं चंद अहादीस के जरिए। सही बुखारी में है, जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ ले इसे ये दोनों काफ़ी हैं। यानी उस बंदे की हिफाजत के लिए ये दो आयतें काफ़ी हो जाती हैं। मसनद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श तले के ख़जाने से दिया गया हूँ, मुझसे पहले किसी नबी को ये नहीं दी गई। सही मुस्लिम शरीफ में है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई और आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे जो सातवें आसमान में है, जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहीं तक ही पहुँचती है और यहाँ से ही ले जाई जाती है, और जो चीज़ ऊपर से नाजिल होती है वो भी यहीं तक पहुँचती है, फिर यहाँ से आगे ले जाई जाती है, और उसे सोने की टिड्डियाँ ढके हुए थी। वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें दी गईं, 5 वक्त की नमाजें, सूरह बकरा के खातिमे की आयतें और तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश। यानी मेराज की शब सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें अता की। वो थी 5 वक्त की नमाजें और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें और तमाम मोमिन बंदों के गुनाहों की बख्शिश। मसनद में है कि हज़रत उक़बा बिन आमिर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की इन दोनों आखिरी आयतों को पढ़ते रहा करो, मैं इन्हें अर्श के नीचे के ख़जानों से दिया गया हूँ। इन्हें ये आयतें अफजल तरीन हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों आयतें गिफ्ट की गई हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन बंदों को नसीहत करते हैं कि ये 2 आयतों को पढ़ने की आदत बना लें। इब्न मरदुया में है कि हमें लोगों पर 3 फजीलतें दी गई हैं। मैं सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श तले के ख़जानों से दिया गया हूँ, जो न मेरे पहले किसी को दी गई न मेरे बाद किसी को दी जाएंगी। यानी ख़ास गिफ्ट है अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। तिरमिज़ी में है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के पैदा करने से 2000 बरस पहले तक एक किताब लिखी, जिसमें से 2 आयतें उतार कर सूरह बकरा ख़त्म की। जिस घर में ये 3 रातों तक पढ़ी जाएं, इस घर के करीबी शैतान नहीं जा सकता। यानी घर को शयातीन से महफूज रखने के लिए भी ये आयतें अगर पढ़ी जाएं 3 रातों तक शैतान करीब भी नहीं आ सकता। एक और हदीस में है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी थे कि अचानक एक दहशतनाक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ के साथ आसमान का वो दरवाज़ा खुला जो आज तक कभी नहीं खुला था। इससे एक फरिश्ता उतरा, उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपको खुशी मुबारक हो, आपको 2 नूर दिए जाते हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतें, उनके एक एक हर्फ पर आपको नूर दिया जाएगा। यानी इस हदीस में बताया गया है कि सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अल्लाह की तरफ से 2 खास तोहफे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुए हैं। इनको नूर कहा गया है और ये आयतें पढ़ने वालों को एक एक हर्फ पर नूर अता किया जाएगा। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अल्लाह के रसूल की अहम तरीन जिम्मेदारी है कि वह अल्लाह पर और उसकी किताबों पर ईमान लाने वालों में अव्वलीन में शुमार हो। मोमिनीन को चाहिए कि वह अल्लाह पर ईमान रखने के साथ साथ अल्लाह के रसूलों पर, उसकी किताबों पर और उसके मलाइका पर भी ईमान रखे। इस्लाम की ये तालीम है कि मोमिन बंदे कभी रसूलों में फ़र्क ना करें, तमाम रसूलों पर ईमान रखें। बंदे को चाहिए कि अल्लाह के हर हुक्म को सुने और उसकी इत्तिबा करे। मोमिन और इताअत गुजार बंदों के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।